हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथिले अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो मु तुमको इंट्रोडक्शन सब दे देथिले। तबे मु तुम पे एक पीपीटी की नेवी आछि। देखो पिले टाइप्स ऑफ जीन रे तुम मु कहिथिले दी टाइप रे जीन रहउछन्ती। गोटा ला कंजुगेटिव जीन और तुम रहउछ पिले इंड्यूसिबल जीन। सो इंड्यूसिबल जीन और कंजुगेटिव जीन मींस कोन ना ए जो इंड्यूसिबल जीन माने कौन पिले जो जीन की तमरो सर्टेन सब्सटेंसेस रो प्रेजेंस रे ऑन ऑफ दैट इज योर इंड्यूसिबल। तो से सब्सटेंस को हम कौन कहूचे इंड्यूसर। कौन कहूचे इंड्यूसर। क्लियर लाइक दैट एमिति बहुत गुडी जीन अछि पिले जी 24 आवर कंस्टेंटली हम बॉडी भीतर एक्सप्रेस होची। लाइक तमरो द एंजाइम्स यूज्ड इन द रेस्पिरेशन और द एंजाइम्स यूज्ड इन द क्रेब्स साइकिल दैट आर कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस्ड in our body. That's why they comes under the category of consecutive gene. Okay. Next, inducible gene. The expression of the inducible gene increased in response to a inducer. As I already told you that the expression of the inducible gene increased in response to an inducer. Inducer is that certain substances चार presence रे की ए जिनसटा तमरो on होची. Then inducers are small molecules, some protein produced by E. coli. Example तमरो अछि beta galactosidase are said to be an inducible because they are only produced in significant amount when a specific inducer lactose is present. That means lactose here act as an inducer. Inducer किए lactose. इंड्यूसर की लैक्टोज। क्लियर। देन सिमिलर एग्जांपल जो देखिए पिला में गोटे ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन pyrolysis of liver is induced by tryptophan, but in our 12th standard tryptophan operon, two types of operon is there. One is your inducible operon and another one is your repressible operon. तो इंड्यूसिबल ऑपरेंड रे कोन होउछ पिले नॉर्मली ना लैक्टोज रो प्रेजेंस रे इंड्यूसर जाय कि तमरो ऑपरेटर रीजन रे बाइंड होउची सो दैट तमरो जो स्ट्रक्चरल जीन थाउची ई कोलाई रो Z Y and A से स्ट्रक्चरल जीन convert होउची into an cluster of mRNA. Then these mRNAs are further converted into enzymes. As we all know that all enzymes are protein, that's why indirectly enzymes behave as a protein, and this is the phenomenon of translation. So if the inducer bind to the operator region, then only the transcription and translation occur. If the inducer cannot bind to the operator region, then the transcription and translation cannot be occur. Okay. Next. Constitutive gene. So student constitutive genes माने कोन बोले देखो मु आगु तुमको कहै छी एबे भी जीन्स ये लिखा है छी constitutive genes are expressed at more or less constant rate in almost all the cell and they are not subjected to regulation. That means हमें regulation का को देबा एबे पिले फैन बुलु छी रे फैन रो रेगुलेटर अछि तो रेगुलेटर रे हम स्लो करि परिबा कि स्पीड करि परिबा जदि रेगुलेटर आगे नथिबो ऑन कले जेती स्पीड रे से बुलिया था बुलियो नाही बंद कर दार अछि मीडियम हम दरकार नै माने कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जिए से केबे भी तमरो रेगुलेशन रे रहिबो नाही बिकॉज़ दे आर कांस्टेंटली एक्सप्रेस्ड इन आवर बॉडी. The products of these genes are required all the time in a cell. Example तमरो बिले enzymes
of citric acid cycle. Citric acid cycle हम कौन पूछे? Krebs cycle. Krebs cycle or TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, TCA cycle. This is what about your constitutive gene. Okay. Next, देखो पिले आगुरु हमें जानी छे there is one enzyme and one gene concept. पिले गोटे एंजाइम गोटे जीन सहित बाइंड हो ताको हमें कहछे वन एंजाइम वन जीन कांसेप्ट बट नाउअडेज इट इज मॉडिफाइड दैट द वन सिस्टर्न एंड वन सब यूनिट कांसेप्ट वन सिस्टर्न एंड वन सब यूनिट कांसेप्ट. तो सिस्टर्न कोन बोले व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टर्न? व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टर्न? सिस्टर्न इज द DNA sequence जाको हमें पूछे पिले सिस्टर्न but genetic information stored in the form of nucleotide sequence is your cistern. So earlier hypothesis proposed that one gene produces one enzyme, one gene produces one enzyme or protein and आपको पूछे कौन हमें one gene one enzyme concept. But nowadays what happened? The cistern is now considered as the genetic unit. Cistern ही तमरो कोडिंग सीक्वेंस को कैरी करूची पिले एबे आम पाखरे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर हेगी रहउची इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो जो फॉर्म रो दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली सिस्टर्न फॉर्म रे रहउची. तो जेनेटिक यूनिट कोडिंग फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सब यूनिट ऑफ एन एंजाइम और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स acting as the smallest unit of genetic expression. So edu hame kon buchile pile cistern is the smallest unit of genetic information. Cistern smallest unit of genetic information. Cistern is the smallest unit of genetic information. So cistern कौन बुझिला पिले तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दा जे तमरो ट्रांसफर होची बा जेनेटिक मटेरियल जोड़ तमरो स्टोर हेगी रहउची दैट इज योर सिस्टम. जोड़ा कि अर्लियर हमें जीन कहउथले ताको टिके मॉडिफाइड फॉर्म रे कोन कह देबा सिस्टम. तो से जो सिस्टम रहउची पिले से तमरो कोन करउची ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन हिसाब रे काम करउची. सो हेंस द वन जीन वन एंजाइम idea might be more accurately regarded as one cistern one subunit concept. Is it clear to all? Okay. Next, gene expression in prokaryotes. So student, what do you mean by gene expression? Gene expression in the sense इमिति बहुत गुडी जीन अच्छी पिले जो माने नॉर्मली स्विच ऑफ मोड रे थांती इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इंड्यूसर दैट इज स्विच्ड ऑन. तो ताको हमें कहूचे जीन एक्सप्रेशन. सो द इंड्यूसिबल जीन्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू जीन एक्सप्रेशन दैट इज नॉर्मली फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. सो ए जो जीन एक्सप्रेशन को डिटेल स्टडी करबा पई दी जन साइंटिस्ट पिले जन का नाम है जैकब एंड अनदर नाम है मोनर. जैकब एंड मोनर formulated operon system. ओके. तो जो जैकब एंड मोनर तमरो पिले ऑपरेशन सिस्टम फॉर्मुलेट करथिले एथि पई दे गॉट नोबेल प्राइज. दे
got Nobel Prize in the field of physiology and medicine. तो सब दिन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमर कहि दी छी देखो पहिले लिखा है द कांसेप्ट ऑफ operon was introduced by Jacob and Monod in 1961. operon माने कोन पहिले ना operon is a defined as a segment of DNA strand consisting of कौन कौन रहउची. Let us take an example. Suppose this is your DNA strand. तो आपको हम operon कोइ परिबा केतळ जेतळ आ पाखरे बिले बहुत गुडी डिफरेंट जीन रहइबो. फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी जीन रहिला, ऑपरेटर जीन रहिला, स्ट्रक्चरल जीन रहिला, प्रमोटर रीजन रहिला. तो आपको हमें ए सब जिंस जा तमर कोन गोटे कोऑर्डिनेटेड मैनर रे थिबे कोन पहिले गोटे कोऑर्डिनेटेड मैनर रे थिबे. सो द operon is defined as a segment of DNA strand consisting of structural gene, operator gene, then देखो पहिले रेगुलेटरी जीन आउ तमरो प्रमोटर साइट. क्लियर. सो स्ट्रक्चरल जीन जो जीन रो तमरो ट्रांसक्रिप्शन हबो. सो स्ट्रक्चरल जीन तमरो कोन नॉर्मली जार ट्रांसक्रिप्शन हबो सी आगु को जाके तमरो एंजाइम तैयारी करियो. सो ए क्लस्टर ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल जीन्स which carries the codon which can be translated into protein. Operator gene माने कोन पहिले ना one operator gene which has an overall control over the process of translation. Listen. देखो पहिले भल से सुनो बुझो एटा. Suppose Z Y A तीनटा स्ट्रक्चरल जीन अछि. ये तमरो अछि रेगुलेटरी रीजन R, ये तमरो P होछि O. क्लियर. ये कोन करिवो रिप्रेसर मॉलिक्यूल तयारी करिवो. कोन रिप्रेसर. ए रिप्रेसर जाई तमरो बाइंड हो कोठे O रे, सो दैट RNA पॉलीमरेज आगु आसी परिबो नाही. क्लियर. तो स्ट्रक्चरल जीन कोन होछि बिले ना जा पाखरे इंफॉर्मेशन थाउची न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रे से तमरो अगेन ट्रांसक्राइब होउची आरएनए को. देन आरएनए रो बनउची तमरो एंजाइम और प्रोटीन. ए सब केतल पॉसिबल जेतल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन पाखरे जाई कि पहुंचीबो. केतल पहुंचीबो जेतल ऑपरेटर रीजन खोला थिबो. जदि ऑपरेटर रे तमरो रिप्रेसर बाइंड हे जाइथिबो ताहाले आरएनए पॉलीमरेज आउ स्ट्रक्चरल जीन पाखरे पहुंची परिबो नाही. एती कांसेप्ट क्लियर हैला. नेक्स्ट. सो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पाखरे पहुंचीबो ना नाही डिसाइड की करछि ऑपरेटर जीन. दैट्स व्हाई ऑपरेटर जीन हैज एन ओवरऑल कंट्रोल ओवर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ऑपरेटर जीन ओवरऑल कंट्रोल करछि का ऊपर ओवर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. क्लियर. नेक्स्ट. Regulatory gene. As I already told you that regulatory gene is responsible for the synthesis of a repressor. That repressor molecule is bind to the operator region and the operator region never allow the RNA polymerase to reach at the structural gene. So a third gene called regulatory gene जाको हमें बुक रे पहले small I रे मेंशन कराई छी is located sometimes at a distance from the operator gene and on the same DNA strands. The main function of the regulatory gene is that it synthesizes a repressor protein. That repressor protein is bind to the operator region. That's why the RNA polymerase cannot reach at the structural gene. Then next which is our P side by promoter side. This is the RNA polymerase binding site. The RNA polymerase enzyme binds at the P site.
P means तमर कौन बोले promoter. P means promoter. Okay, clear? चलो next. देखो पिले फिगर तुम पूरा क्लियरली मेंशन होचो. This is what your regulatory gene जाको हम कोई थी small I. This is what your promoter site बाको हमें कौन कोई परिवा RNA polymerase binding site. RNA polymerase binding site. Okay, this is what your operator gene. Operator, this one is your promoter site, and here is your structural gene, that is Z, Y and A. Clear? Then next, leg operon, that is your inducible operon system. Leg operon को हमें पहले inducible operon बोले कहीं कहूचे because lactose रो presence रे तमर कौन ना operon system switch on होती, that's why that is your inducible operon. So the leg operon is an inducible operon of E. coli. It consists of structural gene Z, Y and A. Code respectively Z का code करछो पहले Z code करछे beta galactosidase, Y code करछे galactoside permeates, A code करछे trans-acetylase. So that's why Z respectively code for beta galactosidase, Y code for galactoside permeates and A code for trans-acetylase. Clear? Next. Function. एबे देखो पिले बीटा गैलेक्टोसाइड रो फंक्शन कौन? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड? लैक्टोज गोटे पिले डाइसैकेराइड. लैक्टोज का को ने की तयारी पिले ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ने की तम तयारी लैक्टोज. तो जतो हाइड्रोलाइज हबो दैट मींस लैक्टोज रो ब्रेकडाउन हबो कोन कोन मोड हबो लैक्टोज एंड ग्लूकोज जाको नै किसी तयारी हेछि. सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोन करछि पिले लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करछि माने ब्रेकडाउन रे करछि काई रे इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. देन नेक्स्ट परमेज. तो परमेज इज द मेन एंजाइम रेस्पोंसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल. दैट मींस लैक्टोज तमरो जदि मीडियम रे प्रेजेंट अछि तो सेल को किमिति आसीबो, that is with the help of the enzyme permease. Then next acetylase. That acetylase is coded by A gene, is not known properly the function एपड नाम मानु जणा नै को बुक रे मेंशन नै बिले एपड डिस्कवर हे परनी बट एति केवल जणा अछि जे A gene is responsible for the formation of trans acetylase. Okay, next the structural gene कौन बोले पहले Z, Y and A transcribe to form मु कहितली तुमको गोटे सिंगल लार्ज mRNA हला ट्रांसक्रिप्शन हला with 3 independent translation हबो काहे कि ना तीनटा एंजाइम रो सिंथेसिस होची. तो तीनटा एंजाइम रो सिंथेसिस होची माने तीनटा इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन हबो. एटा बोले की पॉइंट मन रखो product of transcription. कौन product single large mRNA. But product of translation कौन product of
translation three independent or the three independent translation unit for the synthesis of three distinct enzyme. Three independent translation unit for the synthesis of three different enzymes, that is your beta galactosidase, beta permease and beta transacetylase. Okay, so the product of transcription is your single large mRNA and the product of translation is your three different translation unit for the production of three distinct enzymes. Such a mRNA coding for more than one protein is called polycystonic mRNA. तो ये गोटे mRNA तमर कोन करछि पिले तीनटा जीन बा तीनटा प्रोटीन को कोड करूछि. दैट्स व्हाई दिस mRNA इज नोन एज polycystonic mRNA. कोन बुझाम ताकू polycystonic mRNA. ओके, क्लियर है पर्यंत? नेक्स्ट लेग ऑपरेंट स्ट्रक्चर तुम कहली पिले रेगुलेटर जीन रहला. देखो पिले एडी तुमरो बुझिबा जिंस अछि डीएनए स्ट्रैंड अछि डायरेक्शन एपटे 5 डैश एपटे 3 डैश. क्लियर? तो तमर एटा रहउछि कोन ऑपरेटर जीन. मु तुम कोन कहिथिली जदी तमरो प्रमोटर रीजन रे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होउछि ऑपरेटर डिसाइड करिवो वेदर ए जीन पाखरे से पहुंची पारिबो ना पहुंची पारिबो नाही. जदि ऑपरेटर गेट खोलिला ताहले आरएनए पॉलीमरेज जीवो, जदि गेट खोलिबोनी आरएनए पॉलीमरेज जीवोनी. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जदि आरएनए पॉलीमरेज पहुंचिला एमानकर कोन कोइथिलो लॉन्ग चेन एमआरएनए तयारी करिवे. दिस इज द लॉन्ग चेन एमआरएनए जाको हमें कहते पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए. पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए काहेकि कहले बिकॉज़ पॉली मींस कोन पहले मोर देन वन. तो ए जो एमआरएनए अप्रोक्सीमेटली तीनटा एंजाइम को प्रोड्यूस करूची. तो तीनटा एंजाइम इन द सेंस तीनटा प्रोटीन. दैट्स व्हाई दिस इज योर पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए. क्लियर? बुझा पड़ला? Then देखो पिले the repression and depression of leg operon. जदि पिले एटे इंड्यूसर नाही, no inducer is there, that means repressor molecule अछि. ए repressor गला ऊपर उठला ऑपरेटर रे बाइंड हैला. एटे प्रमोटर रे कोन अछि आरएनए पॉलीमरेज अछि. तो आउ ये बाइंड हैला मींस प्रमोटर आउ एटे आरएनए पॉलीमरेज आगु आसी पारिबो नाही. आसपारियोनी. तो जदि आरएनए पॉलीमरेज एटा आसी पहुंची पारिबो नाही ताले आर ट्रांसक्रिप्शन किन हो हबोनी. एटी जदि पहुंची पारिबो नाही तो ट्रांसक्रिप्शन किन हो हबोनी. एटी जदि पहुंची पारिबो नाही ट्रांसक्रिप्शन किन हो हबोनी. दैट्स व्हाई इट्स कोन लिखुछ दैट्स व्हाई RNA polymerase cannot transcribe operator or the structural genes, that is your Z, Y and A. That's why the model हमरो switch off आपको हम कोन कहछे switch off normally इमिति ही थाउची जेतलो inducer न थाउची, but in presence of inducer that is lactose that is turned into switch on because the depressor cannot bind to the operator region in presence of lactose. Okay, clear? This is what about your regulation of gene expression. देखि दियो प्ले फिगर. नो इंड्यूसर आरएनए पॉलीमरेज अछि एट बाइंड होछि ऑपरेटर रीजन होछि आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ट्रांसक्राइब द ऑपरेटर रीजन. जदि इंड्यूसर आसीबो ताहले ही परिबो. तो एटे कोन होछि देखो पिले रिप्रेसर होछि
रिप्रेसर रेगुलेटर जिन तयारी होची काको रिप्रेसर असला ए रिप्रेसर तम माइंड ला कोड जाई कि ऑपरेटर रीजन रे देन एमान रा ट्रांसक्रिप्शन होबनी सो नो transcription occurs, that's why no proteins are produced. This is all about your regulation of gene expression, that is leg operon system. मु पूरा तुम डिटेल भी बुझेली अगेन गोटे रिपीट कर दूची जे हम फर्स्ट स्टेप पढ़ले पहले तुमर कोन कंजिक्यूटिव जीन कोन इंड्यूसिबल जीन कोन देन हमें पढ़ले इंड्यूसेबल सिस्टम कोन ऑपरेंट सिस्टम रिप्रेसेबल ऑपरेंट सिस्टम कोन देन लैग ऑपरेंट कोन लैग ऑपरेंट लैक्टोज रो प्रेजेंस रे कोन होउची मेकानिज्म लैक्टोज रो एब्सेंस रे मेकानिज्म कोन होउची रेगुलेटरी रीजन कोडा प्रोमोटर रीजन कोन ऑपरेटर जीन कोन स्ट्रक्चरल जीन कोन आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड जदि पिले किसी आ कोन डाउट्स किबा क्वेरी रहउची वी विल डिस्कस इन आवर लाइव इंटरेक्शन क्लास टिल देन बाय बाय टेक केयर